Hello student, good evening class 8. Exercise 3.5, episode number 3 and the writer of Practice Mathematics. So Practice Mathematics as a books. Okay. And now we are going to solve question number 3. And question number 3, that is one question. I will take one question choice. Okay, first of all I will solve this. Okay, after that some other question I will take choice. Clear? First start question number. Solution. First question E. Okay, we have to calculate all the value of 2 root. Okay, square root. Question number 1. Start. 576. 1 whole 49 upon 576. Afterwards, you already know that about this is the mixed fraction, and mixed fraction convert into the improper fraction. Then what will you do? Okay, so first of all I will multiply this position to this position. After that addition with numerator. Clear? 576 1 jar, that is 576. Okay, that is 576 plus 49 upon 576. This implies that, okay, root under, now addition with, that is 5 and 6 to 5 upon 576. You already know that about 6 to 5, the square root of 6 to 5, that is 25, and the square root of 576, what value? That is 24. This is 24. Now I will convert about this fractions into the mixed fraction. 24 1 ja 24 and 1 upon remainder 1, then this. Okay, so this is the final answer. Clear? Next question I will solve question number D. D, that is root under 1 upon 16 plus 1 upon 9. Solution here. First of all, I will take LCM about this to this. Clear? That is next root under also 16 9 ja 144. Okay, 69 ja 144. And first of all, these two this divided. Okay, 16 9 ja and 9 to multiplication. I think that 16 to cross to each other, multiplication. Okay, 9 1 ja 9, that is 9 plus 16 1. This is a trick concept. Okay, afterwards now additions, 16 and 9 addition, that is 25 upon 144. The square root of 25 upon 144, that is first of all square root of 25, that is 5, and the square root of 144, that is 12. Now this is answer. Okay, this question has completed, but next question I will solve about question number 4. Okay, let's start next question. How to solve question number 4? And the question number 4 state that find the square root of the following using division method, and number of question has given in this given question. Okay, first of all I will solve question number 4 of A. Clear? And I will write square root of 147.1369. Clear? Now in the positions 147.1369, we have to calculate the square root. Clear? Now this is the long division concept, long division method. Clear? So let's see how to solve, how to calculate the square root of the given portion with the help of the division method. Okay, first of all I will pair in the right side, to start right side pair this and this. देखिए ये पेयर नहीं हुआ, ये तो इसको सिंगल में हम लोग छोड़ देंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 को डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा,
देखिए मैं बार बार डिवीजन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके लेट्स सी, ये हो गया 1 1 2 हो गया, इसको माइनस कर दिए हम लोग, कैंसिल हो गया, 47 ऊपर से कैरी कीजिए। ओके आफ्टर दैट अब कितना बार हो जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में इधर एडिशन होता है, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखा जाता है, यही कॉन्सेप्ट याद रखिए। 2 4 हो गया, 2 24 हो गया, यहाँ 22 2 जा कितना होता, 44 होता, माइनस कर दीजिए, यहाँ 7 goes 4 33 4 4 कैंसिल। अब कैरी कीजिए, कितना कैरी कीजिए, 13, ये 13 कैरी किया, ठीक है। अब जाएगा कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ज्यादा हो गया। देखिए ये कंप्लीट यहाँ तक हुआ, उसके बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल इक्वेट कीजिए, क्लियर। आफ्टर 1 टाइम्स में हम लोग भेजते हैं, देखिए 1 टाइम्स में इधर 1 रिपीट होता है, ठीक है, तो 1 टाइम में कितना हुआ, 241 हो गया, माइनस कर दी, इधर एडिशन कीजिए, 242 हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना उतना आएगा, 3 goes 1 दैट इज 2 हो गया, 11 goes 4 कैरी करेगा, 1 goes 4 नहीं होगा तो आपका नेवर से कैरी करेगा, तो 1 कैरी किया तो कितना, 11 goes 4 7 हो गया। ओके वहां पर 2 बचा, 2 में 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, क्लियर। आफ्टरवर्ड वी टेक नेक्स्ट कैरी नंबर दैट इज 69 and 69 that is 242। अब 69 कितने, देखिए आप यहाँ 7269, अब कितना बार में जाएगा हमारा, ठीक है, आई थिंक 3 टाइम्स में जा सकते हैं ना, ठीक है, 3 टाइम्स में जा, 3 टाइम्स में, हाँ 3 टाइम्स में चले जाए। देखिए 3 टाइम्स में 100% कैंसिल हो जाएगा, 3 और पेयर में लिखा जाता है ये, तो 3 आपका आगे और वर्क नहीं करना है, इसलिए इतना तक इसको छोड़ सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा कितना हुआ, 9 हुआ, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड कैरी 1 एडिशन कीजिए 7, तो कैंसिल हो गया, तो आपका यही आंसर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 12.13, नाउ दिस आंसर। इसी तरह बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेसिमल में था, आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डेसिमल वाला क्वेश्चन टफ लगता है, तो मैंने उसी को चॉइस करके बनाया। अब बाकी सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से। लेट्स सी नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चॉइस one question. Most of the question has given in this part of the question 5. Okay, clear? First of all, I will choose question number C, and after that, all other questions you can solve. Okay. Question number C of that has given 9 9 9 9 and 9. Okay, clear? Unit tens 100,000 10,000 lakh. Okay. Unit tens 100,000 10,000 lakh, clear? तो 9,99,990 has given in the form of this number. Okay? यहाँ पर क्वेश्चन बोला है without performing any calculation find the number of digit in the square root of the following number. Okay? जो आपका नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट हम लोग जब निकालने जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा, आपका जो स्क्वायर रूट फॉर्म करेगा वो कितने डिजिट का होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो लेकिन विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करना। कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, यानी लॉन्ग डिवीजन से मैंने पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है, कि जब भी आपको लॉन्ग नंबर ऑफ एक लंबा सा डिजिट का आपका नंबर दिया हुआ है, छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना इजी है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ट्रिक से निकाल सकते हैं। और बहुत लंबा नंबर रहेगा तो उसके ट्रिक मैंने उसके लिए भी सिखाया। तो लॉन्ग टर्म्स के प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग लॉन्ग टर्म्स वाला वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं हम लोग। ओके, तो ये भी आपका लॉन्ग नंबर्स है, लार्ज नंबर है, लार्ज डिजिट ऑफ नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट तो निकालना है, लेकिन आपको उस स्क्वायर रूट का निकलने के बाद वो भी होना चाहिए 3 डिजिट का होना, वो भी होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ द डिजिट होना चाहिए। और वो नंबर ऑफ डिजिट कितना है,
सिर्फ उसी को आपको बताना है, लेकिन कैलकुलेशन करके नहीं। कैलकुलेशन मतलब हो गया डिवीजन मेथड का यूज करके नहीं बनाना। ओके क्लियर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो 9,99,000 जो देख रहे हैं इसका नियरेस्ट किसके नियरेस्ट में आएगा, ये किसके नियरेस्ट के स्क्वायर का नंबर में आएगा, ये पहले चेक करना। हमको लगता है 9 लाख है जो, तो इसका 1000 के नियरेस्ट लगता है। एक 1000 ले लेते हैं और सेकंड क्या ले लेते हैं 900 लेके चलते हैं। चलिए एक 900 में 900 स्क्वायर कितना हो गया आपका 81,000 यानी 8,10,000 हो गया। ओके ये क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा, अब 1000 लीजिए, 1000 स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया आपका 10 लाख हो जाएगा। ये 10 लाख हो गया। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 10 लाख। ओके क्लियर। अब देखना है कि इन दोनों के बीच का ये आ रहा है, लाई कर रहा है, तो 81, 8,10,000 लेस देन है, ये नंबर ग्रेटर है, इससे ग्रेटर देन है। ओके ग्रेटर है और लेस देन किससे है 10 लाख से। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब सोचिए यहां से 8,10,000 है, किसके स्क्वायर में आ रहा है, ये 900 के स्क्वायर में आ रहा है, लेस देन, और ये जो है कितना डिजिट का है नहीं, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा उसको आपको फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट नहीं करना है। क्लियर। सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट बताना है, किसका स्क्वायर रूट आएगा तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा। तो यहां हम लोग एजम्पशन करके निकालेंगे। 10 हो गया, 10 किसका स्क्वायर में हो गया जी 1000 स्क्वायर। क्लियर। आफ्टरवर्ड्स अब यहां से देखिए ये जो 9,99,999 है ये किसके रेंज में आ रहा है, 900 स्क्वायर और 1000 स्क्वायर के रेंज में आ रहा है, उसके इन दोनों में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो बताइए 900 स्क्वायर इसमें कितना डिजिट है 3 डिजिट है, इसका कितना डिजिट है आपका, इसमें 4 डिजिट है ना, बट स्टार्टिंग वाला देखना है। तो दोनों के बीच में लाइक कर रहा था, कहीं ना कहीं इसका भी कितना डिजिट होगा आपका 3 डिजिट होगा, क्या उससे ज्यादा होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये भी कितना का होगा 3 डिजिट ऑफ नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर हो गया। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व हो जाएगा, इसी तरह कैलकुलेशन कीजिए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। Next question number 6. We are going to solve question number 6, and now this question has given in the form of statement question, that is language problem, otherwise words problem. Okay, how to solve about this type of language questions? First of all, you understand about the language questions. Okay, after that you can solve it. Clear? तो देखिए लेट्स सी क्वेश्चन अंडरस्टैंड। ओके अबाउट द गिवन क्वेश्चन अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ आपका। ओके ये हमारा स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर मैंने बनाया, स्क्वायर का फिगर बनाया। ओके स्क्वायर फील्ड, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया हैज गिवन, एरिया हो गया आपका 60025 मीटर स्क्वायर, एरिया हैज गिवन। क्लियर, 60025 मीटर स्क्वायर। तो अब बोला गया कि अ मैन, तो सबसे पहले एक चीज काम करते हैं यहां से, जब एरिया दिया हुआ स्क्वायर फील्ड का तो इसका हमें साइड पता नहीं है। ओके अननोन है साइड, तो एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके तो स्क्वायर का साइड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन आते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर
इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होता है, एरिया. ओके, रूट अंडर एरिया ऑफ द स्क्वायर. क्लियर. नाउ द वैल्यू हैज गिवन 60025 meter square. This equals to now 6 unit tens 100,000 10,000, that is 60,025. Okay, has given in the form of the given number. Clear. And we have to calculate the square root of this given number. Clear. So I already taught you that about the short trick, how to find the square root, okay, as a short trick concept. Okay, so let's see how to solve as a short trick concept. देखिए ये 60,025 किसके नियरेस्ट में जा रहा है. मैंने आपका स्क्वायर नंबर बताया था, बेस का स्क्वायर और नंबर एक साइड दिखा था ना. तो देखिए 250 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 62500 हो गया ऐसा. ठीक है, इसको काउंटिंग कीजिए, यूनिट टेंस 100,000 10,000 यानी 62,500. देखिए इसके नियरेस्ट में मैंने बोला था, आप लोगों ट्रिक में समझाया था कि जो बेस का स्क्वायर है उसको हम लोग उसके नंबर को चेक करेंगे, जो दिया हुआ नंबर के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो ये 60,000 है, इसका स्क्वायर करता है 62,000, नियरेस्ट है, यानी इस नंबर का आपका नियरेस्ट मैच कर रहा है. तो बताइए इसका बेस क्या हो गया, 250 हो गया. तो हम लोग क्या कर लेंगे, 250 बेस लेंगे. अब बताइए ये नंबर जो है ये ग्रेटर है या ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, मतलब जो बेस का स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर रहेगा और गिवन नंबर स्मॉलर रहेगा तो माइनस लेंगे, हम लोग माइनस लेंगे. अब 25 का केस आ गया, मैंने 25 का भी केस बताया था, जो कि 15 का स्क्वायर में भी आपका लास्ट का 2 डिजिट 25 आता है, 5 का स्क्वायर में भी लास्ट का 2 डिजिट 25 आता है, से आपका 25 का स्क्वायर दैट इज 625 का लास्ट का 2 डिजिट भी 25 आता है. तो फिर कैसे लेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक में 2 डिजिट का लास्ट का 2 डिजिट का हम लोग सीखे हैं लेने के लिए, माइनस उससे करने के लिए सीखे हैं. लेकिन मैंने स्पेशल केस में 25 का भी केस बताया था. जब भी 25 जब लास्ट का 2 डिजिट में 25 कंटेन करता है तो आप 3 डिजिट लेके चलिएगा. ओके, क्लियर. तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए 0 to 5 है. अब 0 to 5 किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और स्टार्टिंग में 0. क्लियर. तो 5 के स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ 5 ले लिया. ठीक है, अब माइनस कीजिए तो कितना हो गया 245 हो गया. 245 क्या मीटर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा मीटर. क्लियर. ये चीज हमारा साइड हो गया, साइड ऑफ द स्क्वायर हो गया. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे की ओर. इसको अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ, आगे कैलकुलेशन बाकी. देखिए अब बोला गया क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अ मैन साइकल्स अलोंग इट्स बाउंड्री. देखिए जो बाउंड्री सरफेस है, ये बाउंड्री, इसमें एक आदमी जो क्या करता है आपका साइकिलिंग करता है. ठीक है, स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री जो है उसमें क्या करता है, साइकिलिंग करता है एक आदमी जो है. और कितनी स्पीड से करता है, 18 किलोमीटर पर आवर्स, यानी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ. एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर. ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ आपका साइड इसलिए. तो चलिए इसको मीटर में चेंज कर देते हैं. मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक इसका भी सीखे हैं. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना. ये भी एक ट्रिक हम लोग फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड. अब देखिए यहाँ कैंसिल हो गया तो बचा क्या 5 हो गया मीटर पर सेकंड. क्लियर. आफ्टरवर्ड्स यहाँ से वर्क कर सकते हैं हम लोग. देखिए अब जब ये बाउंड्री सरफेस पर साइकिलिंग करता कोई आदमी, तो देखिए बाउंड्री सरफेस पर चारों तरफ साइकिलिंग कर रहा है. अब स्क्वायर के चारों तरफ बाउंड्री सरफेस को मेजरमेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं. तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो गया 4 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड होता है. 4 into the side has given 245 meter. Clear. Now multiplication to each other. Okay. 5 4 is 20. Carry 2. 4 4 is 16. 16 and 2 18. Carry 1 and 4 2 is 8 and 1 9. इतना हो गया मीटर. हमें फाइंड आउट करना क्या था, in how much time
टाइम विल ही रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था साइकिलिंग करना, ठीक है, देखिए इस तरह से साइकिलिंग कर रहा है ऐसे, उसी पॉइंट में वापस आने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछा गया ये टाइम निकालना है। तो देखिए टाइम के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, टाइम इक्वल्स टू, ठीक है, ये स्पीड हमारा जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस, या डिस्टेंस क्या होगा आपका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस में लिख देता हूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग एक फॉर्मूला यहां से ये भी जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला, टाइम फाइंड आउट करने के लिए होगा। अब देखिए डिस्टेंस हैज गिवन कितना हो गया, 980 मीटर, एंड टाइम हैज गिवन दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस मीटर कैंसिल आउट एंड अब 5 1 जा 5 बचा कितना, 5 1 जा 5 बचा 4, यानी आपका हो गया 48। अब 5 9 जा कितना हो गया, 45 हुआ, बचा कितना, 5 9 जा यहाँ पर 45 हो गया ना, बचा आपका 3 ना, बचा है यहाँ पर 3। देखिए यहाँ से 5 से डिवाइड दे दीजिए, 980, तो 5 1 जा 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 5 9 जा 45, यहाँ 48 है 3, अब 5 6 जा 30 हो गया, दैट इज 196 हो गया, 196। अब देखिए स्लैश में है, एक स्लैश, ये देखिए आपका हो गया डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट, फिर एक स्लैश आया, तो ये स्लैश वाला का वैल्यू जो वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, दैट इज सेकंड ऊपर चल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको वापस ओरिजिनल पॉइंट में रिटर्न आने में आपको उस आदमी को कितना समय लगेगा, 196 सेकंड लगेगा। कंप्लीटेड ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, ठीक है। Now question number 7, okay, and question number 7 has given in the form of language problem, okay, words problem। अब कंटिन्यू आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर आपका टोटल है 12 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका विदाउट लैंग्वेज का है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप इसको सॉल्व कैसे करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेज प्रॉब्लम, ओके। एन आर्मी कमांडर विशिंग टू अरेंज हिज सोल्जर्स, ओके, एक आर्मी कमांडर है जिसका इच्छा है कि सोल्जर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे, रो में करना है या कॉलम में, तो रो में करना है, रो में होता है सोल्जर का आपका अरेंजमेंट, ठीक है। हु यानी आर्मी कमांडर वर 8289 इन नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पाउंड, ठीक है। आपका जो है इतना जो 8289 जो सोल्जर को, इतना नंबर का सोल्जर जो है उसको स्क्वायर फॉर्म में आपका अरेंजमेंट किया गया, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट किया गया है। अब पाया गया कि उसमें से 8 सोल्जर क्या हो गया, छूट गया, इतना आपका सोल्जर को अरेंजमेंट कर दिया गया स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, 8 सोल्जर क्या हुआ, रुक गए, मतलब छूट गया। अब बोला गया कि हाउ मेनी सोल्जर वर देयर इन ईच रो, एक रो में कितना सोल्जर आएगा, एक रो में कितना सोल्जर कंटेन करेगा, स्टैंड कर गया, ठीक है, अरेंजमेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन में है आपका जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से 8289 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 8289 का, ओके। तो यहां से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 8289 का, लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं, ओके। तो पेयर बनाइए, तो 9 9 जा कितना हो गया 81, 9 पेयर में यहाँ पर स्क्वायर 81 माइनस, यहाँ से माइनस कर दे 1 हो गया 89, कैरी कीजिए, ठीक है, यहाँ से 18 हो गया। अब बताइए कितने टाइम्स में जाएगा ये, आई थिंक कितने बार में जाएगा, देखिए यहाँ से कुछ वीडियो में स्टॉप करते हैं।